الذين رضي الله عنهم ورجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم به بلادك ومحيي به عبادك وانك قلت وقولك الحق والبحر بما كسبت ايدي الناس. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. صدق الله العلی العظیم. اس عظیم الشان مجلس اعزا کی شکل میں اور جسے سیمینار نام دیا گیا ہے جنت البقیع کی یاد میں، اس عظیم پروگرام کی قبولیت کے لیے اور جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ایک ظلم کو دنیا کے سامنے بتانا ہے اور ایک ظلم کی یاد دنیا کو دلانا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال ہم کالے کپڑے پہن کر اور سوگ کے شکل میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، غم کی شکل میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال چاہے کام کے شروع ہونے کی شکل میں ہو، چاہے کام کے اختتام ہونے کی شکل میں، آئندہ سال جنت البقیع تعمیر ہو جائے اور اس کی خوشی کا ہم سب آج کے دن، آج جو ہم غم منا رہے ہیں، انشاءاللہ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو اور امام کے ہاتھوں میں یہ جنت جلدی تعمیر ہو اور ہم سب جو ہے اس تعمیر بنائے جنت البقیع کا جشن منائیں انشاءاللہ۔ امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھیں محمد۔ ہم شکر گزار ہیں یہاں انجمن حیدری اور امام جمعہ مولانا لقمان صاحب اور مولانا سید حسن مہدی، جنہوں نے ہمیں یہاں پر حاضر ہو کر اس عظیم عبادت میں آپ کے ساتھ شریک ہونے کا ہمیں موقع عطا فرمایا۔ سادے اور آسان لفظوں میں کچھ باتیں ہم آپ کی خدمت میں آج کی مناسبت کے ضمن میں اور آج کی مناسبت کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ سب سے پہلے ایک آیت ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں پڑھی، جس آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے دنیا میں ایک نظام بنایا ہے، میں نے دنیا میں ایک سسٹم بنایا ہے کہ کچھ ظالم آ کر ظلم کرتے ہیں تو کچھ ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر ظالموں کو دباتے ہیں۔ اگر یہ سسٹم میں نے نہ بنایا ہوتا تو روئے زمین پر نہ یہودیوں کی عبادت کا زندہ رہتی باقی رہتی، نہ مسیحیوں کی، نہ مسلمانوں کی، نہ دوسرے مذاہب کی۔ کوئی مذہب کی کوئی عبادت گاہ دنیا میں موجود نہ ہوتی اگر بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض لوگوں کا پر ان کے کاموں پر، ان کے ظلم پر اللہ نے لگام نہ لگائی۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی مولانا نے اپنی نظامت میں بتایا کہ ایک چھوٹے سے دیہات میں ہندوستان کے کونے میں رہ کر ہم جو یہ جنت البقیع کی یاد منا رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ شاید آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے سمجھانا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل تھا، لیکن آج آسان ہے۔ لائیو ہو رہا ہے یہ پروگرام
तो लिंक्स इधर उधर शेयर होती हैं। तो आज अगर कोई इंसान यूट्यूब वगैरह में, फेसबुक वगैरह में जाए, उसको जो नज़र आएगा वो यही है कि कुछ लोग हैं जो किसी मसले का एतराज़ कर रहे हैं। अब वो छोटा गांव, बड़ा गांव, दूर और नज़दीक कोई माना नहीं रखता। जितने जिंदा ज़मीर लोग हैं, जो बेदार लोग हैं, वो एतराज़ कर रहे हैं। ये एक मसला है कि इसका फ़ायदा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ फ़ायदा ना हो, नहीं, बहुत फ़ायदा है, सवाब और दूसरी चीज़ें अपनी जगह पर। चंद बातें, चंद सवालात आज के मुनासिबत से। आज हम क्यों जमा हुए हैं? आज से 100 साल पहले मदीना मुनव्वरा में गुंबद, रोज़ा, मज़ार 4 इमामों का और सैयदा का और दीगर सहाबा का मौजूद था, जिसको एक बातिल फ़िक्र ने, एक जालिम फ़िक्र ने उसको मुनहदिम कर दिया, शहीद कर दिया। और शहीद करने के पीछे उनका जो ऐलान था, जो उन्होंने वजह बताई, वो ये बताई कि ये लोग क़ब्रों पर जाकर दुआएं करते हैं, जबकि दुआ अल्लाह से करनी चाहिए, और ये काम उनके अकीदे के हिसाब से शिर्क। तो जितने भी शिर्क के जगह हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए। ये 100 साल पहले जो जिन्होंने ये जुल्म ढाया है, ये आज के उठे हुए लोग नहीं हैं, बल्कि मुतवक्किल ने करबला को ढाने का इरादा किया, नागर कर दिया, हल चला दिया, खेती शुरू कर दी। इमाम हुसैन के कब्र के अतराफ के कोई करबला ना जाए, करबला पर पाबंदियां लगाई गई, करबला पर जुल्म ढाया गया, रोका गया, मना किया गया। तो ये उस ज़माने से भी चलता हुआ आ रहा है। आज उसी फिक्र के रखने वालों ने, जब उनके हाथ में ताकत आई, तो उन्होंने मज़ारात को ढा दिया। एक सवाल जो हम और आप उनसे कर सकते हैं, आसान सा, अगर कब्रों का रोज़ा बनाकर जाकर ज़ियारत करना तुम्हारी निगाह में शिर्क था, जिसकी बिना पर तुमने जन्नतुल बकी के मज़ार को ढा दिया, तो रोज़ा नबी को क्यों बाकी रखा? वो भी तो गुंबद है, वो भी तो मज़ार है, वो भी तो एक कब्र है। मस्जिद की जगह को बाकी रख लेते, बाकी को ढा देते, क्यों नहीं? यहाँ पर जो तारीख का मुताला की है, मखसूसन जन्नतुल बकी के मसले को, इनका प्रोग्राम ये था, अगर आप जाकर उनके उस वक्त के बातों को पढ़ेंगे, जन्नतुल बकी को मुनहदिम करने के बाद उनका दूसरा टारगेट था मस्जिद नबवी। लेकिन जन्नतुल बकी को जैसे ही उन्होंने शहीद किया, तो दुनिया भर के मुसलमान, सिर्फ शिया नहीं बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमानों ने जब एतराज शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि नहीं भाई, जब एक फिरके के मानने वाले मुहतरम शख्सियतों के रोज़े को शहीद किया जाए तो इतना एतराज़ हो रहा है, नबी जिसको सारे मुसलमान तस्लीम करते हैं, उसके रोज़े को ढा दिया जाए, तो फिर अब ये लोग खामोश होने वाले नहीं हैं। कल हमने एक मजलिस में एक जुमला कहा था, सलाम हो हमारे अहले बैत पर, जिन्होंने जब जिंदा थे जानों को कुर्बान करके इस्लाम को बचाया, आज खबरों को कुर्बान करके नबी के रोजे को बचा रहे हैं। आज इनके रोजे की शहादत ने नबी के रोजे की हिफाजत की, और आज दुनिया में जहां कहीं पर भी कोई रोजा आबाद है, तो जन्नतुल बकी और आज का जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, जिस सतह पर भी, जिस तरीके से भी हम अंजाम दे रहे हैं, इसका नतीजा और इसका असर है जो हमें नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ बातें दुनिया भर के अखबार के एतबार से हमें सुनाई दे रही हैं। आप हजरात अगर आज कल के दुनिया के अखबार को देखें, ये जो हमने ये काम किया है जन्नतुल बकी की याद में, अगर पास्ट में जाएं हम 101 साल पहले, इस मजलिस का, इस प्रोग्राम का कोई वजूद नहीं था। क्यों वजूद नहीं था? इसलिए कि उस वक्त जन्नतुल बकी आबाद थी, जुल्म नहीं था वहां पर। जुल्म के आने के बाद ये अमल और ये तारीख जो है, इस मुनासिबत से ये प्रोग्राम मजलिस की शक्ल में, सेमिनार की शक्ल में,
जुलूस की शक्ल में, एतराज़ की शक्ल में, मेमोरेंडम की शक्ल में शुरू हुआ। इसका जो फ़ायदा है, देखें, एक तारीख़ी वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे जिससे हमें पता चले कि इसका क्या फ़ायदा है और हमें ये काम क्यों करना चाहिए, क्यों हम ही कर रहे हैं। इसके बारे में ये बात हम समझ सकते हैं। हज़रत यूसुफ के बच्चों ने, हज़रत याकूब के बच्चों ने ज़ालिमाना तौर पर हज़रत यूसुफ को कुएं में डाल दिया। वापस आकर कहने लगे कि भेड़िए ने खा लिया। खून से भरा हुआ कुर्ता भी लेकर आए झूठा, बताया कि बाबा यूसुफ, हम अपने सामान की देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर हमने कहा था रुको, यहाँ पे रहो आप, हम जाएंगे बकरियों को घास देकर आएंगे, चरा कर आएंगे। जब हम वापस आए तो हमने देखा कि खूनी कुर्ता पड़ा हुआ है और यूसुफ नहीं है। तो भेड़िए ने यूसुफ को लुकमा बना लिया अपना। हज़रत याकूब को मालूम था कि ये जो कह रहे हैं झूठ है। तो हज़रत याकूब ने ना बच्चों को मारा, ना बच्चों को सजा दी, ना अदालत कायम की, कुछ नहीं किया। एक काम शुरू किया। क्या काम शुरू किया? सिर्फ बैठ कर कहते थे, बेटा यूसुफ तो कहाँ है, यूसुफ तो कहाँ है, यूसुफ तो कहाँ है। इतना यूसुफ यूसुफ अपने जबान से कहते थे कि जो लोगों ने, जिन लोगों ने यूसुफ को कुएं में डाला था, उनकी नींदें हराम हो गई, नींद हराम हो गई उनकी। तो वो लोग आकर कहते थे, बाबा कब तक रोओगे, कब तक आंसू बहाओगे। तो यहां से हमको मालूम होता है जब जुल्म को याद किया जाता है तो जालिम की नींद हराम हो जाती है। तो यहां से हमको यह भी मालूम हो जाएगा कि करबला के बाद क्यों अहले बैत हरम को या हुसैन कहने से रोका गया और आंसू बहाने से रोका गया। इसलिए कि जनाब सकीना के आंसू आंसू नहीं थे, बल्कि वो फरात थी जिसमें यजीद डूब रहा था। यजीद चाह रहा था मैं नजात पा जाऊं ताकि आंसू ना बहाए, ये जुल्म को याद ना करें। तो हजरत याकूब ने सिर्फ यूसुफ यूसुफ कहा। तो यहां से और एक बात भी, या हमारे माहौल में ये जुमला हम सुनते हैं कभी कभी कुछ जाहिल मुसलमानों की जबान से, जो कहते हैं कि शिया लोगों ने इमाम हुसैन को कत्ल करके खुद ही आंसू बहाते हैं। वो अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए, तौबा के लिए कि हमने क्या बड़ा गुनाह कर दिया है, तो इस वजह से इन्होंने ही कत्ल किया और यही आंसू बहाते हैं। तो हम कहेंगे कि जो एतराज़ कर रहे हैं हम पर आंसुओं पर, याकूब के आंसुओं पर जालिमों ने एतराज़ किया था, मजलूमों ने नहीं। आंसुओं पे एतराज बता रहा है कि जो एतराज करते हैं वो जालिम है, जो करबला के जुल्म की पैरवी करते हुए उस फिक्र को रखने वाले हैं। आज करबला के आंसुओं पर वो एतराज करते हैं। मजलूम आंसू बहाता है और जालिम का चेहरा दुनिया के सामने लाता है। और एक बात जो हमें इस वाक़े से मालूम होती है वो ये कि हजरत याकूब कब तक आंसू बहाते रहे। इतना आंसू बहाया हजरत याकूब ने कि यूसुफ वापस आ गए। तो हम भी कहेंगे कि जन्नतुल बकी की याद हम उस वक्त तक मनाते रहेंगे जब तक जन्नतुल बकी तामीर ना हो जाए। तो हमें यकीन है कि जब हजरत याकूब के आंसुओं और अज़ादारी का नतीजा अल्लाह ने यूसुफ को लौटा कर अता किया, हमारे इस अज़ादारी और मजलिसे जन्नतुल बकी के याद और इसके नतीजे में इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हमें जन्नतुल बकी का रोज़ा तामीर नजर आए। और आजकल एक अखबारात में जो हम देख रहे हैं कि दो बड़े इस्लामी ममालिक के दरमियान मुसालहा हो रहा है और अनऑफिशियल तौर पर यह अखबार भी आ रही हैं कि जन्नतुल बकी के तामीर के कॉन्ट्रैक्ट भी अंदरूनी तौर पर शुरू हो गए हैं। ये जन्नतुल बकी की याद में मजालिस करने का नतीजा है जो इंशाअल्लाह हमें बहुत नज़दीक देखने को मिलेगा। दो तीन सवाल आपकी खिदमत में छोटे छोटे से अर्ज करके हम आपकी खिदमत में जो फिक्र है कि देखें, आंसुओं का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। आंसुओं का फ़ायदा यह है कि जो आदमी
आंसू बहाता है, पत्थर दिल नहीं होता, नर्म दिल आदमी होता है, मिजाज उसका नर्म होता है। तो नर्म मिजाजी बहुत ही अच्छी सिफत है इंसान के लिए। जो लोग आंसू नहीं बहाते सख्त मिजाज होते हैं। सख्त मिजाजी इस्लाम के एतबार से बुरी सिफत है। तो हम जो ये जन्नतुल बकी और अपने मरहुमीन के, अपने इमामों के, अपने बुजुर्गों के, अपने औलिया के कब्रों पर हाजिर होते हैं, कब्रों पर हाजिर होने के बाद वहां पर जाते हैं, दुआएं करते हैं, आंसू बहाते हैं, गिरिया करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तो इसके लिए 2-3 सवाल कुरान और हदीस के, सुन्नत रसूल के रोशनी में आपकी खिदमत में अर्ज कर। कब्र तैयार करना, एक मरने वाले के लिए कब्र बनाना इस्लाम इजाजत देता है या नहीं देता? सूरह कहफ में असहाब कहफ के बारे में अल्लाह ने एक आयत नाजिल की। कहा जब असहाब कहफ गार से वापस आए, वापस आने के बाद फिर दोबारा वो गार में जाकर इंतकाल कर गए, हमेशा के लिए वो उनका इंतकाल हो गया, तो उनकी अजमत को देखकर लोगों ने मीटिंग शुरू की कि इनके कब्रों पर हम क्या करें। कुछ लोगों ने कहा कि एक गुंबद बना देते हैं, एक कुछ साया बना देते हैं, ताकि वो साया एहतराम और इज्जत हो जाए उनकी, जो कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है। एक ग्रुप और एक तबके का ये नजरिया था कि मस्जिद बना दे यहाँ पर, ताकि अच्छा हो जाएगा, लोग आएंगे, इबादत करेंगे, इनका भी नाम बाकी रहेगा, इनका एहतराम भी बाकी रहेगा, अल्लाह की इबादत भी हो जाएगी। इस आयत को अल्लाह ने कुरान में मेंशन किया है, नोट किया है, कुरान में नाजिल किया है। इस बात की दलील है अगर ये काम जो उनकी फिक्र थी वो गलत फिक्र थी, तो अल्लाह इस आयत के बाद कहता कि इनका ये नजरिया गलत था, न कब्र पर कोई बिना बनानी है, न कब्र पर कोई मस्जिद बनानी है। इनकी इस नजर और इनके नजरिए को अल्लाह ने कुरान की आयत बनाकर नाजिल करके ये ऐलान किया है कि नेक मकसद के लिए कब्र पर तामीर जायज है। ये कुरान की आयत, ठीक है। क्या कब्र पर अब हम बना देंगे, कब्र मरहूम गए दफन करके आए, कोई साया भी हमने बना दिया, क्या हाजिर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? एक और आयत में अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि ए रसूल, जो मुशरिक हैं उनकी कब्रों पर आप जाया ना करो, उनके कब्रों पर ना जाओ। जब अल्लाह मुशरिकों के कब्र पर हाजिर होने से नबी को रोक रहा है, तो दूसरी तरफ से ये इजाजत दे रहा है कि जो मुशरिक नहीं उनके कब्र पे आप जा सकते हैं। गुंबद बनाने की, मस्जिद बनाने की भी इजाजत अल्लाह ने कुरान की आयत में दी। नबी को यह हुक्म भी दिया कि मुशरिकों की कब्र पे हाजिर ना हो। अगर आप चाहते हो मुसलमानों की, मोमिनों की, साहिबान फजलो करम की कब्र पे जाओ। अब अल्लाह ने इजाजत भी दे दी। क्या नबी जाते थे? क्या नबी ने करके बताया जियारत, कब्र पे हाजिर होकर बताए? नबी का यह तरीक़ा था कि हर जुमेरात या एक मखसूस वक्त नमाज शब से पहले जन्नतुल बकी की कब्रों पर पहुंचकर नबी जियारत करते थे। तो कब्र बनाने की भी अल्लाह ने इजाज़त दी, कब्र पर हाजिर होने की भी इजाज़त दी। नबी ने अंजाम देकर भी बताया। जब अपनी माँ की कब्र पर नबी जाते थे तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि लोग नबी के साथ हो जाते। जब नबी कब्र पर पहुँचते तो अपनी माँ की कब्र पर बैठकर इतना आंसू बहाते कि साथ जाने वाले नबी के गिरिया को देखकर आंसू बहाते। तो नबी फरमाते थे जैसे मैं अपनी माँ की कब्र पर हाजिर हुआ हूँ, तुम भी अपनी मरहूमीन की कब्रों पर जाया करो। इसलिए कि मरहूमीन को याद करोगे, कब्रों पर जाओगे तो तुम्हारा दिल नर्म रहेगा और तुम आखिरत और क़ियामत को याद करके बहुत सारी बुराइयों से बच जाओगे। जब ये इजाज़त हमको दी है, कुरान ने हमको कहा है, नबी ने अंजाम देकर बताया है, तो अब यहाँ पर यह कहना कि कब्रों पर नहीं जाना चाहिए, कब्रों पर गुंबद नहीं बनाना चाहिए और ज़ियारत नहीं करनी चाहिए, ये वो लोग हैं जो कुरान के माना और कुरान के तालीमात से दूर हैं, दुश्मन हैं। एक जुमला, एक छोटा सा जुमला मसाइब के बारे में, इसलिए कि आज हमें गमगीन भी होना है, दुख भी करना है।
ये हमारे माहौल की मिसाल हम दे रहे हैं, जो हम जिस माहौल में हम जिंदगी करते हैं। हर बाप की दिल की यह अरमान होती है कि मेरा घर कच्चा ही क्यों ना हो, मेरे बच्चे का घर पक्का हो जाए, है नहीं? हर बाप की दिल की तमन्ना होती है कि मैं पुराने कपड़े पहन लूं। ईद गुजरी है, बाप ने सब बच्चों के कपड़ों का इंतजाम किया, शायद खुद के कपड़ों का इंतजाम नहीं किया। वो कहता मेरे बच्चे नए कपड़े पहन ले, मेरे लिए काफी है। मेरे बच्चे का घर अच्छा बन जाए, मैं किराए के घर पे ही रह जाऊं, मैं पुराने घर ही में रह जाऊं, मेरे बच्चे का नया घर हो जाए। नमाजों में कभी बाप अपने घर के लिए दुआ नहीं करता, अपने बच्चों के लिए दुआ करता है। खुद की तरक्की कम मांगता है, बाप अपने बच्चों की तरक्की ज्यादा मांगता है। तो जब किसी बाप के निगाहों के सामने उसके बच्चे का आलीशान घर नजर आता है तो बाप का सीना खुशी से चौड़ा हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ने कितना अच्छा घर बना लिया। अगर इसी का उल्टा, अगर बच्चा परेशान हो तो बाप को सुकून नहीं मिलता। आज के दिन अगर सबसे ज्यादा कोई चीज गिरिया कर रही है तो वो गुंबद सब्ज है, जो जन्नतुल बकी को देखकर आंसू बहाकर कहता है कि नबी का रोज़ा इतना आलीशान, बाप का रोज़ा इतना आलीशान, बाप के रोज़े के सामने बेटी की कब्र का निशान भी नहीं। कितनी गुर्बत है। आप जाएं यहाँ पर अपने मरहुमीन की कब्रों पर, आज गरीब से गरीब भी अगर अपना कोई अजीज इंतकाल कर जाता है, कम अज कम जो वो